ये स्वच्छता के प्रति प्रतिबद्धता है, ये कमिटमेंट है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तालियों के साथ स्वागत कीजिए पूरे उत्साह जोश के साथ। न गंदगी करूंगा, न किसी और को करने दूंगा। अगर 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं कभी गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो हमारे शहर गांव को आकर के गंदा कर। इन दिनों मैंने एक अभियान चलाया, सफाई का अभियान। लोगों को लगेगा कि यार प्रधानमंत्री को तो कितने बड़े बड़े काम करने चाहिए। ये कोई प्रधानमंत्री को करने वाले काम है। महात्मा गांधी को सबसे प्रिय था सफाई, स्वच्छता। मुझे विश्वास है मैं अपनी भारत माता को गंदगी से हम मुक्त करा पाएंगे। और यही बोल है जिसने प्रेरित किया है सबको स्वच्छता के लिए, हमारी सफाईगिरी के पीछे का मकसद। मैं निवेदन करूंगी इंडिया टुडे ग्रुप के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ अरुण पुरी जी से कि वो प्रधानमंत्री का स्वागत करें। Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to India Today Group Safaigiri Awards. It's been an amazing day for us. Now, allow me to present to you India's most relentless force of nature, a one-man army, the man who has more energy than all of us combined. The man who has liberated us from our self-inflicted inhibitions. The hardest working Prime Minister India has ever had. Please join me in welcoming the Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi. प्रधानमंत्री आपका हार्दिक स्वागत। Prime Minister, we are deeply honored and grateful to you for sparing the time for us to be present, for you to be present here among us after your grueling and most successful trip to the US. And now you're coming straight from Bihar. Of course, the whole world wants to know what is your secret of this boundless energy. Prime Minister, I've always admired your ability to constantly come up with innovative ideas and catchy slogans and how to transform India. Swachh Bharat was one of your first ideas after coming to power. Ladies and gentlemen, if you've had the privilege of chatting with the Prime Minister, you would know he's a font of ideas. Nothing excites him more than a good idea, his own or anyone else's. Pradhan Mantri ji, you may not recall this, but the idea of what you are here for came as a suggestion from you in one of our conversations. You remarked to me that India needed an environment in which people competed with one another over cleanliness under various categories. And true to your style, you even listed some categories for me. So I'm really delighted that you are here to preside over the fruition of your own idea. As citizens, we are constantly aware of just how dirty our Indian cities are, with garbage piling up on our streets producing foul smells and spreading diseases. When we travel by train or by car to the interiors of India, we are repelled and shamed to see people defecating in the open. In village, the problem is particularly acute, as despite 68 years of independence, a majority of the houses still have no toilets. Apart from the health hazards, it is particularly embarrassing and unsafe for our women. The fact that out of the 1.1 billion people in the world who are forced to open defecation, more than half of them are in India. This is a national shame. All of us wanted to help, but we just didn't know how to go about it. Till you showed us how we could convert our shame into energy for national action and came up with Swachh Bharat. It is a simple idea,
but a truly revolutionary one. As you said on your first Independence Day speech from the ramparts of Red Fort, that if 125 crore countrymen decide that they will never spread filth, which power in the world has the ability to spread filth in our cities and villages? And that is the point, ladies and gentlemen. This has to be a people's movement. We cannot just wait for the government to give us a clean India. We all have to do our part. We are all in it together. Pradhan Mantri ji, I was honored and humbled when you appointed me and the India Today group as brand ambassadors Swachh Bharat Abhiyan, because I believe it'll make a huge difference to our country in every which way. We in media are best equipped to raise awareness, which brings about change in attitudes that a clean India benefits us all. This is the reason for India Today Group launching the Safai Giri Awards. In our quest to spread awareness, we decided to showcase and honor the initiatives and the champions of Clean India. We believe that nothing inspires people more than by example. We have awards in 13 categories, and it was very satisfying to see fine contenders in each of these. The winners were chosen by an eminent and independent jury. We got 200 entries, and the jury had to work very hard on the final selection. I would like to thank our eminent jury for sparing their valuable time for selection process. The work these innovators are doing is diverse and exceptional. From water ATMs to self-cleaning e-toilets to roads made out of plastic and fuel made from waste, their work and stories are inspirational. Pradhan Mantri ji, aapko shayad yaad nahi hoga ya aap khush hoge that we have suspended that all our regular programming for all our 4 news channels for 8 hours since this afternoon. So there is no breaking news today for us. Instead, a sing-a-thon with some of the leading singers of the country who have felicitated our awardees with song and music all of today. I would like to thank all the wonderful singers for their participation and their help in spreading the message of Swachh Bharat. For those who were not here during the day, there's a small video clip I would like to play of what happened during the day. Please. बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। जागी जागी है धरती सारी और जागा जागा है अंबर, जागी जागी है नदियाँ सारी और जागा जागा है सागर। जागो आओगे न दूरियां मिटाओगे, न जोश में ये होश से उड़ाओगे। मैं ठहरा रहा ज़मीं चलने लगी, धड़का ये दिल सांस थमने लगी। ओ क्या ये मेरा पहला प्यार है। Thank you. We've done the sing-a-thon because it was a great day, really. Very, very enjoyable.
We have done the Sing-a-thon because for a country as diverse as us, music crosses language barriers and unites people of different cultures. In music, we find togetherness and harmony. It is the language of the heart and the soul. We want to unite and inspire people through the power of music to build a clean India. For this cause, we've had a special Safaigiri anthem composed too, which you will hear later. I hope what we have unleashed here today helps to build a movement that inspires the habit of cleanliness in our countrymen. Our part of the Safaigiri Awards will be an annual event. And of course, Prime Minister Sir, we expect you to give the award every year. May I now please request you to present the Safaigiri Awards for 2015. Thank you. दरअसल अलग अलग श्रेणियों में लोगों का चुनाव हमने किया था। आज दिन भर उन पुरस्कारों की घोषणा तो हुई है, लेकिन सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री के हाथों उन्हें सम्मानित किया जाएगा। एक एक करके हम शुरू करते हैं। हमारी पहली कैटेगरी है गार्बेज गुरु। तालियों के साथ दिखाते रहिए कि आप में जोश कितना है। गार्बेज गुरु विनर मेलहेम आइकॉस। मेलहेम आइकॉस नाम की संस्था ने ऐसे पोर्टेबल बायोगैस प्लांट विकसित किए जिनसे बड़ी तादाद में ठोस अपशिष्ट से ईंधन बनाया जाता है। ऐसी लगभग 300 परियोजनाओं से शहरों के कूड़ा घरों में बायोगैस से बिजली का उत्पादन प्रारंभ हुआ। मेलहेम आइकॉस के संस्थापक कर्नल सुरेश रेगे से मैं निवेदन करूंगी कि वो मंच पर आएं। कहने के लिए कचरा यानी वेस्ट जिसका कोई काम ना, उससे ऊर्जा पैदा की है। बहुत धन्यवाद और बहुत मुबारक कर्नल रेगे। हमारी अगली कैटेगरी है टॉयलेट टाइटन। कैटेगरी टॉयलेट टाइटन विनर ईराम साइंटिफिक सॉल्यूशंस। ईराम साइंटिफिक सॉल्यूशंस नामक इस कंपनी ने भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक टॉयलेट का निर्माण किया। ये टॉयलेट वेस्ट से ऊर्जा का निर्माण करते हैं। इन ई टॉयलेट्स में सेंसर्स का प्रयोग होता है जिससे कम से कम पानी इस्तेमाल होता है। इस वक्त देश में 1200 से ज्यादा ई टॉयलेट्स एवं 200 ट्रीटमेंट प्लांट्स में इस तकनीक का प्रयोग हो रहा है। स्वागत कीजिए हमारे टॉयलेट टाइटन केरल के ईरम सॉल्यूशंस के चेयरमैन सिद्दीक अहमद का। दरअसल सरकार की तरफ से और निजी कोऑपरेशन सहयोग की वजह से ही ये सब कुछ आगे बढ़ेगा, ये सपना फलेगा फूलेगा। हम बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की ओर जो है टेक आइकन। Category Tech Icon Winner Dr. R. Vasudevan। सन 2001 में डॉक्टर आर वासुदेवन ने एक ऐसी तकनीक का आविष्कार किया जिससे प्लास्टिक वेस्ट से मजबूत सड़कों का निर्माण किया जा सकता है। केवल इतना ही नहीं, ये तकनीक लगभग प्रति किलोमीटर 50,000 रुपए सस्ती साबित होती है। देश के अनेक इलाकों में डॉक्टर वासुदेवन की इस तकनीक से सड़कों का निर्माण जारी है। डॉक्टर आर वासुदेवन जी त्यागराजन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मदुरई के डीन हैं। तकनीक का ये कमाल का इस्तेमाल है। बहुत मुबारक डॉक्टर वासुदेवन आपको। अब हमारी अगली कैटेगरी जो है वाटर वॉरियर। कैटेगरी वाटर वॉरियर
Winner, Nandi Foundation. नांदी फाउंडेशन ने सन 2005 में पहले जल शुद्धिकरण संस्थान की शुरुआत आंध्र प्रदेश में की। आज देश में 400 से भी ज्यादा जल शुद्धिकरण संस्थानों का संचालन हो रहा है। ये संस्थान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका राज्यों में स्थापित है। हैदराबाद की नांदी कम्युनिटी वाटर सर्विसेज के सीईओ अनूप रत्नाकर राव यानी हमारे वाटर वॉरियर। पानी का संरक्षण, पानी का वितरण जीवन के संरक्षण से कम नहीं। हमारी अगली कैटेगरी है कम्युनिटी मोबिलाइजर। Category Community Mobilizer. Winner Dr. P.B. Salim, District Magistrate and Collector. सन 2013 के अक्टूबर माह में डॉक्टर पीबी सलीम ने 100 बार शौचागार नाम की योजना पश्चिम बंगाल के नौदिया जिले में शुरू की। लगभग 1.5 साल के कम वक्त में इस योजना के परिणाम स्वरूप 3.5 लाख घरों में शौच घर की व्यवस्था की गई। यही नहीं, इस योजना के तहत 200 से ज्यादा सामूहिक शौच घर बनाए गए। 30 अप्रैल सन 2015 को नौदिया जिले को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया। बड़ी उपलब्धि के लिए ढेरों तालियां पश्चिम बंगाल के नौदिया से पीबी सलीम जी। निजी आदतों को बदलना इतना मुश्किल, सार्वजनिक तौर पर यह किया जाए, पूरे समुदाय की आदत बदल दी जाए, लाजवाब। हमारी अगली कैटेगरी है क्लीनेस्ट पार्क। Category Parks. Winner Rock Garden, चंडीगढ़। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन सर्वाधिक स्वच्छ पार्क पाया गया। इस गार्डन में औसतन 4000 लोग रोजाना आते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ की व्यवस्था के कारण लोगों के जहन में इसको एक साफ सुथरा पार्क माना जाता है। और अवार्ड लेने के लिए मंच पर आ रहे हैं एडवाइजर टू एडमिनिस्ट्रेटर विजय देव जी। अभी तक रॉक गार्डन को आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता था, साथ में स्वच्छता की उपलब्धि भी जुड़ गई है। सार्वजनिक स्वच्छता के क्रम में हमारी अगली कैटेगरी है क्लीनेस्ट मार्केट प्लेस। Category Markets. Winner Connaught Place, New Delhi. नई दिल्ली के कनॉट प्लेस ने अन्य बाजारों के मुकाबले ज्यादा सफाई रखने में कामयाबी हासिल की है, और वो भी तब जबकि यहाँ यातायात और लोगों के आने जाने की संख्या आसपास की व्यावसायिक गतिविधियों के कारण ज्यादा है। मंच पर अवार्ड लेने के लिए एनडीएमसी के चेयरमैन नरेश कुमार जी। पूरे देश भर से इतनी तादाद में लोगों के आने के बावजूद सफाई एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत मुबारक आपको। हमारी अगली कैटेगरी है क्लीनेस्ट हिल स्टेशन। Category Hill Stations. Winner Gangtok, सिक्किम। ज्यादातर लोगों के मुताबिक सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक सबसे साफ शहर पाया गया है। पूरे शहर में सफाई रखने के लिए निर्देश लगाए गए हैं, जिनका वहां के निवासी और सैलानी दोनों ही सख्ती से पालन करते हैं। गैंगटॉक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर सीपी धकल जी स्टेज पर पहुंच रहे हैं अवार्ड लेने के लिए।
यानी यहां पर स्वच्छता भी पर्यटन का जरिया है। हमारी अगली कैटेगरी है कॉर्पोरेट ट्रेल ब्लेजर। कैटेगरी कॉर्पोरेट ट्रेल ब्लेजर, विनर पीरामल। सन 2008 में पीरामल फाउंडेशन ने सर्वजल योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत नागरिकों को स्वच्छ पेयजल मुहैया करवाया गया। लगभग 5 वर्षों में करीब 154 जल उपचार संयंत्र लगाए गए, जिनसे 20,000 से भी ज्यादा घरों को लाभ हुआ। अवार्ड लेने के लिए मंच पर हैं पीरामल ग्रुप के चेयरमैन अजय पीरामल जी। ऐसी कोशिशों, ऐसे काम के हम सब कायल हैं। आगे अपनी अगली कैटेगरी की ओर बढ़ते हैं हम, जो है क्लीनेस्ट घाट। कैटेगरी घाट्स, विनर 80 घाट वाराणसी। स्वच्छ भारत मिशन के पश्चात बनारस का 80 घाट देश का सबसे साफ घाट बन गया है। नए जन शौच घरों का निर्माण किया गया है और सफाई की व्यवस्था दिन में एक बार से बढ़ाकर जरूरत के मुताबिक अनेकों बार की जाती है। यहां प्रधानमंत्री जी ने खुद मुहिम छेड़ी थी। तालियों के साथ आप जोश बढ़ाइए उषा चौमर जी का, जो कि प्रेसिडेंट हैं सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन की। अस्सी घाट की वो तस्वीरें हम सब भूल नहीं सकते हैं, जहां से इसकी शुरुआत हुई है इस मुहिम की। अगली कैटेगरी हमारी जो है क्लीनेस्ट मॉन्यूमेंट। कैटेगरी मॉन्यूमेंट्स, विनर विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता। देश के किसी भी स्मारक की तुलना में कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में जन शौच घर और कूड़ेदान की संख्या सबसे अधिक है। यहाँ सफाई की व्यवस्था उच्च स्तर की है और स्मारक के आसपास के इलाके को भी साफ सुथरा रखा जाता है। अवार्ड लेने के लिए मंच पर हैं विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के क्यूरेटर और सेक्रेटरी जयंतो सेनगुप्ता। बाकी ऐतिहासिक धरोहरों से बढ़कर ये इमारत कोलकाता के शहर की सड़कों गलियों के लिए भी एक मिसाल है स्वच्छता के लिए। हमारी आज की अगली कैटेगरी है क्लीनेस्ट बीच टाउन। कैटेगरी बीचेस, विनर हैवलॉक आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार। देश के सभी समुद्री तटों की तुलना में अंडमान का हैवलॉक बीच सफाई में अव्वल माना गया है। यहाँ जन शौचालयों और कूड़ेदानों की संख्या अन्य समुद्री तटों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। साउथ अंडमान की ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सी वासु जी इस वक्त मंच पर हैं। यानी यहां के समुद्र तट की सुंदरता न प्लास्टिक से बाधित होती है, न कचरे से, बेमिसाल। अब वक्त है हमारी अगली कैटेगरी का, क्लीनेस्ट रिलीजियस टाउन। कैटेगरी टेम्पल टाउन, विनर तिरुपति, आंध्र प्रदेश। सन 2011 की जनगणना के मुताबिक तिरुपति शहर में खुले में शौच की समस्या लगभग नहीं के बराबर थी। करीब 90% घरों में शौच की उचित व्यवस्था है और इनमें से ज्यादातर घरों में शुद्ध पेयजल की भी व्यवस्था है। पब्लिक टॉयलेट्स और कूड़ेदान की भी शहर भर में उचित संख्या है। और इस अवार्ड लेने के लिए इस वक्त स्टेज पर हैं तिरुपति म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर वी विनय चंद जी। बहुत बहुत बधाई इस उपलब्धि के लिए सभी विजेताओं को हमारे। एक बार सभी विजेताओं के लिए जोर से तालियां हो जाएं।
और अब हम अपने सभी विजेताओं को आमंत्रित करना चाहेंगे स्टेज पर। अपने अपने अवार्ड्स लेकर आएं ताकि प्रधानमंत्री जी के साथ एक ग्रुप फोटो आपकी हो। तालियों का शोर कम नहीं होना चाहिए, इसी से हौसला बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत धन्यवाद और बहुत मुबारक हो आप सबको। उम्मीद है आप सब मिसाल बने इस देश में सबके लिए, कोई भी जो स्वच्छता के लिए कुछ भी करना चाहता हो। प्रधानमंत्री जी, इंडिया टुडे ग्रुप ने एक खास बुकलेट तैयार की है स्वच्छता के लिए। हम आपसे निवेदन करेंगे कि उस बुकलेट का अनावरण करें। स्वच्छता की दिशा में एक अनूठा प्रयास है हाइजीन करिकुलम और हाइजीन किट, जिसके लिए रेकिट बेंकाइजर साउथ एशिया के रीजनल डायरेक्टर नीतीश कपूर जी को मैं आमंत्रित करूंगी कि मंच पर आए। पहली किट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भेंट करें। दरअसल स्वच्छ भारत में बच्चों की भूमिका को समझते हुए डिटॉल ने एक्सीड और बटरफ्लाई एजुफील्ड्स के साथ मिलकर समूचे देश के प्राथमिक स्कूलों के लिए हाइजीन करिकुलम यानी स्वच्छता का ये पाठ्यक्रम विकसित किया है 4 अलग-अलग भाषाओं में। बहुत धन्यवाद नीतीश कपूर जी। No, it's fine. I request the Honorable Prime Minister to please say a few words for the awardees and for the function. Thank you. अरुण जी, उपस्थित सभी महानुभाव, मेरी एनर्जी की बड़ी चर्चा की आज, लेकिन गला खराब है। और खराब इसलिए है कि सुबह से निकला हूं, काफी भाषण करके आया हूं, तो उसका थोड़ा प्रभाव तो रहेगा, कल ठीक हो जाएगा। अरुण जी एक बार मुझे मिलने आए तो ऐसे ही बातें चली हमारी
स्वच्छता के संबंध में, और बातों बातों में कुछ बातें मैंने उनसे बताई थी, लेकिन मैं हैरान हूं कि उन्होंने हर बात को लेटर एंड स्पिरिट में पकड़ा, उसके पीछे लग गए और लोगों को भी प्रेरित किया, लोगों को जोड़ा। मैं उनके इस प्रयास के लिए हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं। जिन महानुभावों को आज अवार्ड मिला है, मुझे उनको सम्मानित करने का सौभाग्य मिला है। मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने जो काम किया है वो कईयों के लिए प्रेरणा का कारण बनेगा, और ये सिलसिला चलता ही जाएगा। आपकी सिद्धि आने वाले दिनों में औरों को भी इस काम को करने के लिए प्रेरित करेगी, और इसलिए भी मैं आपका अभिनंदन भी करता हूं, लेकिन मैं आपसे ये भी अपेक्षा करता हूं कि जहां भी अवसर मिले आप इस विषय पर लोगों को बताइए, आपका अनुभव शेयर कीजिए, किस प्रकार से इस काम को आपने किया, कैसे इसको अमल में लाए, कैसा परिणाम मिला, क्योंकि वही अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रेरणा का कारण बनने वाला है। आज सारे कलाकार मित्रों ने भी इसको रंग जमा दिया। मुझे तो इतना समय नहीं, तो मैं लाभ नहीं ले पाया लेकिन ये आपका योगदान है, देश की युवा पीढ़ी को इस काम के लिए प्रेरित करेगा। मैं आप सबको भी बधाई देता हूं कि आपने इस काम को सराखों पे लिया है। मैं देख रहा हूं कि ये एक कार्यक्रम ऐसा है, स्वच्छ भारत, जिसमें करीब करीब हर कोई मदद करता रहा है। विशेष करके मीडिया ने, खास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने एक प्रकार से मुहिम चलाई, और उस मुहिम में सरकार के खिलाफ कुछ नहीं था। लोगों को दिखाते थे वे डस्टबिन है, फिर भी वो वहीं बाहर फेंक रहा है, फिर उसको कैमरा वाले पकड़ते थे तो फिर वो शर्मिंदगी महसूस करता था, और औरों को भी लगता था यार हम डस्टबिन तो है, हम क्यों नहीं डालते। स्वच्छता मूलतः स्वभाव का विषय है, और एक बार स्वभाव बन जाए तो फिर आप कभी गंदगी बर्दाश्त ही नहीं करोगे, कभी नहीं करोगे। दुर्भाग्य से हमारे देश में कुछ, हमारी भी तो विशेषताएं हैं। हमारे यहां समाज में पर्सनल हाइजीन, इस विषय में बहुत बड़ी जागरूकता रही, लेकिन सोशल हाइजीन में उदासीनता रही। आपने देखा होगा पुराने घरों में भी बुजुर्ग होंगे, आप बाहर से आओगे कहेंगे पैर धो दो पहले, फिर घर में आओ, जूते बाहर रख के आओ, अंदर मत आओ। उनके मन में सब धार्मिक कारण होते हैं, लेकिन वो मूलतः तो एक परंपरा है।
छोटी सी बात होगी कि हाथ धो दो, फलाना मत करो, ढीकना मत करो। ये परिवार में जहां पुरानी पीढ़ी के लोग होंगे उस घरों में आपको ध्यान में आया होगा। शहर हो, गांव हो, तो पर्सनल हाइजीन में बड़ी ही कॉन्शियस सोसाइटी रही हमारी, लेकिन सोशल हाइजीन में हम बहुत उदासीन रहे। अब आवश्यकता यह है कि हम पर्सनल हाइजीन को तो महत्व देते ही, देना भी चाहिए, लेकिन सोशल हाइजीन को भी उतना ही महत्व देना चाहिए। अगर ये हम नहीं करेंगे। दूसरा, सामान्य रूप से देश आजाद होने के बाद हमारे देश में एक कमी रही। कमी ये रही कि आजादी के आंदोलन के कारण एक माहौल बना था, लेकिन साथ साथ में दिमाग में फिट हो गया था कि अब हमें कुछ नहीं करना, देश आजाद हो गया, अब सब सरकार करेगी। और वो ऐसा हमारी जहन में आ गया है कि एक गांव में एक छोटा गड्ढा हो तो पूरे गांव के नेता लोग मिलकर के एक जीप किराए पर करेंगे, 100 किलोमीटर दूर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या स्टेट हेडक्वार्टर पे जाएंगे और मेमोरेंडम देंगे कि हमारे गांव में एक गड्ढा है। अब ये जो किराए के पैसे से अगर गड्ढा भर दे तो गड्ढा भर जाता। अगर आजादी के आंदोलन के बाद ये जो स्पिरिट था वो इस तरफ अगर डाइवर्ट हो गया होता, जिसमें यह देश हम सबको बनाना है, मैं विश्वास से कहता हूं जिस देश में इतनी ताकत है। 1960 को आते आते तो इस देश को बना दिया होता देश के लोगों ने, लेकिन उल्टा हो गया। वो करेगा, उसका काम है, वे क्या करते हो, क्यों नहीं करते हो। यही आवश्यकता है। अभी स्वच्छ भारत अभियान की सफलता की एक कुंजी क्या है, चाबी क्या है? अगर जिस दिन लगेगा कि ये सरकार का कार्यक्रम है, ये कभी सफल नहीं होगा। जिस दिन लगेगा ये मोदी का कार्यक्रम है तो बिल्कुल ही निष्फल जाएगा। अगर ये राजनीतिक दलों का कार्यक्रम बनता है, ये सरकार का कार्यक्रम बनता है, तब तो मैं मानता हूं हम इतना नुकसान करेंगे इस काम को जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। ये हम सबका कार्यक्रम बनना चाहिए। प्रधानमंत्री को भी कहीं पर भी कूड़ा कचरा फेंकने का हक नहीं है और किसी छोटे नागरिक को भी हक नहीं है। ये माहौल जब तक नहीं बनाएंगे हम देश को ये स्थिति में नहीं ला सकते। मैं जानता हूं, ये जिस दिन मैंने लाल किले पर से ये विषय को रखा था, मैं कोई सोच करके और बड़ा कागज पे कार्यक्रम बना करके गया नहीं था, और वो मुझे जमता भी नहीं है, वो मेरी आदत में नहीं है। मन कर गया, मैं बोल दिया। लेकिन उस समय मुझे पूरा अंदाज आया था। एक तरफ भाषण चल रहा था, एक तरफ थॉट प्रोसेस भी चलता था कि मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया है, मेरे बाल नोच लिए जाएंगे। लेकिन ये रिस्क मैंने लिया है, और मुझे लगता है कि गांधी जी से बड़ी कोई प्रेरणा नहीं हो सकती इस विषय में। गांधी 150 2019 में है। क्या हम गांधी की एक इच्छा पूरी नहीं कर सकता है देश? क्या नहीं दिया गांधी ने हमको? आज हम जो कुछ भी है उस महापुरुष के बदौलत है। क्या हम कुछ प्रयास नहीं कर सकते? यही एक विचार था मेरे प्रेरणा का पीछे, और उसी में से कार्यक्रम बन गया, और वो कार्यक्रम अभी चल पड़ा है, और हम कल्पना नहीं कर सकते इतनी बड़ी मात्रा में चल पड़ा है।
देश आजाद होने के बाद, मेरी गलती हो तो मुझे क्षमा करें जो लोग मेरे पीछे सर बहुत बारीकी से एनालिसिस करते हैं वो लोग, लेकिन मेरा अनुमान है कि देश आजाद होने के बाद संसद में कभी भी स्वच्छता पर चर्चा नहीं हुई होगी, ऐसा मेरा मत है। लेकिन पिछले 1 साल में कोई सत्र ऐसा नहीं है कि स्वच्छता को लेकर के चर्चा न हुई हो। हमारी पिटाई भी हुई है, हमारी पिटाई भी हुई है। कोई कल्पना कर सकता है, ये मीडिया बाकी व्यापार तो है ही है, बिजनेस है। सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज नहीं, एडवर्टाइजमेंट के बिना ये कार्यक्रम चलाया। ये कब सोचा था क्या कि सफाई के लिए इतने सारे कलाकार, इतने सारे लोग आज पूरा दिन भर एक ही मंत्र, सफाई 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 सफाई। ये पहले नहीं हुआ होता। अगर एक कोई सबसे बड़ा पैरामीटर इसकी सक्सेस का है तो ये है। ये मुझे जितने भी लोग मिलते हैं उसमें से एक बात मुझे सुनने को मिलती है, बोले मोदी जी आपने हमारा जीना हराम कर दिया है। मैंने कहा क्या हुआ? बोले मुझे वो मसाला खाने की आदत थी, लेकिन मेरा पोता मुझे थूकने ही नहीं देता कहीं। वो बोले मोदी मोदी करता है। अब ये जो लोग इस क्षेत्र में हैं उनको पता है, ऐसा नहीं कोई मोदी ने आकर के कोई स्वच्छता का विषय लिया है। कई लोग हैं जिन्होंने इस काम में जीवन खपा दिया है, कई गांधीयन लोग हैं जीवन खपा दिया है। उन सबको बराबर समझ आती है कि इस चीज का कितना फायदा हो रहा है। आपने देखा होगा कि हमारे देश में ट्यूबवेल में एक बच्चा अगर गिर जाए, अब तो टीवी वाले समय नहीं निकालते हैं, लेकिन पहले तो सारे टीवी कैमरा वहीं हो जाते थे। अब वो सांस ले रहा है, आंखें हिला रहा है, आर्मी थोड़ी देर में पहुंचने वाली है, नेता लोग आए हैं लेकिन लोग नेताओं पर गुस्सा कर रहे हैं। ये सब आपने देखा होगा। करीब 24 घंटे 30 घंटे जितनी देर निकालने में लगती थी, लाइव कमेंट्री चलती थी। और मैंने देखा था परिवारों में माताएं टीवी से हटती नहीं थी, खाना नहीं पकाती थी और रो पड़ती थी कि बच्चा जिंदा निकला कि नहीं, बच्चा जिंदा निकला कि नहीं। ये पूरे देश में हमने, याद होगा ये दृश्य आपको, एक बच्चा ट्यूबवेल में मर रहा है या मरने की संभावना पैदा हुई है, देश को बेचैन बना देता है। लेकिन हमें पता है गंदगी के कारण, गंदे पानी के कारण, गंदगी के बीच रहने के कारण पर डे 1000 बच्चे मरते हैं। 1000 बच्चे। अब मुझे बताइए कि स्थिति हम कब तक चलने देंगे? एक गरीब परिवार को गंदगी के कारण फैली हुई बीमारियों का औसत एवरेज 7,000 रुपीज खर्च आता है जी। अगर उसके जीवन में 7,000 रुपया बच जाए, मतलब कि एवरेज महीने का 500 रुपया बच जाना। अगर हम इस सारे विषय को इस रूप में देखें तो पता चलेगा भाई हमें कोई अधिकार नहीं है गंदगी करने का।
ये हमारा दायित्व है। और ये काम ये सरकार नहीं करती, वो म्युनिसिपैलिटी नहीं करती। वो विवादों से अगर देश को सचमुच में गांधी जी को याद करके काम करना है तो मैं सबसे यही प्रार्थना करूंगा। शुरू में जिसने जो आलोचना करनी थी कर ली, जुड़ सकते हैं जुड़े, नहीं जुड़ सकते हैं तो हम इसका मजाक न बनाए जी। मुझे याद है काशी में ये 80 घाट को आपने अवार्ड दिया, वहां एक प्रभु घाट है। एक नागालैंड की बच्ची जो काशी में आकर के पढ़ रही थी और उसको उसके में मन लग गया, वो प्रभु घाट की सफाई में लग गई। धीरे धीरे यंग जनरेशन जुड़ती गई। आप जाके देखना प्रभु घाट क्या सफाई की इन बच्चों ने। सारे यंग जनरेशन है, बीएचयू के स्टूडेंट जाते हैं, सफाई करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं क्या मजा आता है, सुबह जाके वहीं जाकर के कुछ गंदी फेंक करके आ जाना। और ये रो पड़ती थी, कितनी मेहनत की, देखिए गंदा कर दिया, फिर उठाती थी, फिर साफ करती थी। कितना कमिटमेंट होगा। जब मैं अभी उन लोगों से, सब उन नौजवानों से मिला, मेरे लिए इंस्पिरेशन था। कैसा बदलाव आ रहा है। अभी बेंगलोर के एक स्कूल के बच्चों ने एक ऐप बनाई और अमेरिका में एक कंपटीशन में उनको इनवाइट किया गया और वो अवार्ड जीत करके आई है। ऐप क्या है, आपका कूड़ा कचरा लेने वाले के लिए भी उसमें जगह है और देने वाले की भी जगह। एक मार्केट खड़ा कर दिया उसने ऐप के द्वारा। और सभी 8वीं 9वीं कक्षा के बच्चे हैं बेंगलोर के एक स्कूल के। अभी अमेरिका जाके अभी अभी आए हैं, उनको अवार्ड मिला। यानी इतने प्रकार के लोग इस काम में लगे हैं। मुझे कल किसी ने बताया, हमारे वेंकैया जी बता रहे थे, अहमदाबाद में कोई 102 साल की कोई वयोवृद्ध माता जी है। वो सुबह उठ करके निकल पड़ती है अपने मोहल्ले में, डस्टबिन है कि नहीं, यही उसका मिशन है। डस्टबिन है कि नहीं, डस्टबिन में डालो, डस्टबिन के बाहर मत डालो। 102 साल की उम्र। आज देखिए वातावरण देखिए, कोई बेटी ये कह दे कि उसके घर में टॉयलेट नहीं है तो मैं शादी नहीं करूंगी। ये घटनाएं हो रही है। एक मां अपनी बकरी बेच करके कहती है मुझे टॉयलेट बनाना है। ये बदलाव आ रहा है और ये एक जन आंदोलन में परिवर्तित होता है तो उसका एक परिणाम मिलता है। आज भी हमारे यहां खुले में शौच जाना, दुनिया में 60 करोड़ लोग, वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट कह रहा है 60 करोड़ लोग खुले में शौच जाते हैं और वो सारी बीमारियों की जड़ वहीं पर शुरू होती है। शौचालय बनाने का अभियान चलाया है। जब मैंने विषय लिया तो सरकार में भी थोड़ा, क्योंकि कोई सरकार के विषय थे ही नहीं, ये बजट था, चलता था। मैंने कैपेसिटी बिल्डिंग का काम किया, 200 कलेक्टर की ट्रेनिंग कर चुका हूं। देश में 600 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं, सबको बुलाता हूं और उनको पूरा उनका ट्रेनिंग करवाता हूं, क्योंकि कैपेसिटी बिल्डिंग एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। लेकिन जब हमने इस बार लगे तो खींच करके गांवों के अंदर 60 लाख टॉयलेट बनाने का संकल्प किया सरकार ने। और कल जब मैं रिपोर्टिंग ले रहा था, मैंने कहा भाई देखिए अब कल 2 अक्टूबर है, बताइए कहां पहुंचे हो। तो मुझे बताया गया कि 95 लाख टॉयलेटों ने पूरे कर दिए का। 60 लाख का टारगेट तय करते हुए डरते थे। ये बदलाव आया। स्कूलों में करीब 4,15,000 टॉयलेट कन्याओं के लिए समय सीमा में बन गए। रेलवे ने करीब 5700 के टॉयलेट, बायो टॉयलेट ऑलरेडी रिप्लेस कर दिए उन्होंने, क्योंकि वरना ट्रेन आती थी तो रेलवे पर सब छोड़ करके जाती थी फिर आगे। अब ये अब चल रहा था जी, कोई कहां कौन, धीरे धीरे से। अब कुछ एक बात है कि भाई कोई भी कह सकता है कि क्या हुआ,
ये सवाल उठ सकता है, सरकार को जवाब देना भी पड़ेगा, भाग नहीं सकते। लेकिन मैं 4 हमारे साथ बराबरी की बातों का उल्लेख करना चाहूंगा। एक सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड एंड साउथ कोरिया। बहुत छोटे छोटे देश हैं, बड़े देश नहीं है, हमारे एक राज्य से भी छोटे हैं। सिंगापुर में वहां के प्रधानमंत्री ने 59 में, सबसे पहले 59 में उन्होंने सिंगापुर की सफाई के लिए उन्होंने विषय शुरू किया। और तब वो एक छोटा सा मछुआरों का गांव जैसा ही था, तब सिंगापुर 59 में। लेकिन 68 तक नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री लगातार इस विषय को कहते रहते थे, कोशिश करते थे। 68 में वही प्रधानमंत्री ली कुआन यू स्वयं इस काम को बेड़ा उठा करके निकल पड़े। 59 यानी करीब करीब 60 से लेकर के आज जो हम सिंगापुर देख रहे हैं ना, इतने लंबे समय का एक लगातार पुरुषार्थ का परिणाम है। उसी प्रकार से मलेशिया के प्रधानमंत्री, उन्होंने भी 60s में इस विषय को उठाया और उन्होंने नागरिकों को, उनके पास थोड़ी कानून की ताकत भी थी, हमारे यहां तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन उनके पास वो भी ताकत थी, उनको भी 60 में शुरू किया, 1960 में शुरू किया। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस काम को चलाया गया, जन भागीदारी का भरपूर प्रयास किया। आज मलेशिया इस स्थिति पर इतने सालों के बाद आया है। थाईलैंड के किंग स्वयं इस सफाई अभियान को लेकर के चल पड़े, उन्होंने झाड़ू उठाया, निकल पड़े। वो भी 1960 में किया उन्होंने। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति, उन्होंने भी ये 1960 में ये चारों एक साथ इस काम को शुरू किया, सफाई का। लेकिन आज जो हम इनकी सफाई और बढ़िया देश देख रहे हैं, इसको आते आते 2015 हुआ है। हमारा देश कितना बड़ा है हमको अंदाज है, हमारी आदतें कैसी हमको पता है, हमारी कठिनाइयां क्या है पता है। लेकिन गांधी एक ऐसी प्रेरणा है कि 125 करोड़ लोग अगर तय कर लें कि हमें चलना है, हम चल सकते हैं जी। ये एक विषय, हिंदुस्तान एक विषय राजनीति से परे कर दें, आप देखिए जी बदलाव आना शुरू हो जाएगा। हर किसी को लगेगा। आज गांव के पास इतने पैसे जाते हैं जी, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर वो चाहे तो इसको पूरा कर सकते हैं। शहरों के लिए, गांवों के लिए। और ज्यादातर हमने देखा है, आदतें सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम है जी। हमारा स्वभाव चलता है यार, चलता है, वो करता है। अगर एक बार हम एक माहौल बना दे, और आजकल बना है, मैंने देखा है कि कुछ लोग मुझे कहते हैं कि वो कार लेके कोई जाता है और अगर शीशे से बाहर अगर बोतल फेंकी तो दूसरा दौड़ता है, कार को रोकता है, वो नीचे उतारता है, बोले उठाओ बोतल को, उठाओ। क्यों ऐसा किया? ये माहौल बन रहा है। और सबसे ज्यादा मुझे जो ताकत मिली है वो यंग जनरेशन से मिली है, बालकों से मिली है। उन्होंने इस विषय को बराबर पकड़ा है जी। हम इस बात को आगे चलाएंगे तो मुझे विश्वास है कि हम बहुत बड़ी मात्रा में बदलाव ला सकते हैं। वेस्ट टू वेल्थ एक बहुत बड़ा प्रोफेशन खड़ा हुआ है। बहुत कम लोगों ने सोचा होगा कि ये भी एक बिजनेस हो सकता है। आज वो बहुत बड़ा पोटेंशियल बिजनेस है और बहुत बड़ी मात्रा में लोग इस व्यवसाय में आ रहे हैं। आज सफाई करने के लिए अलग प्रकार के लोग मिल रहे हैं, टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो रही है। तो वेस्ट टू वेल्थ ये सफाई में से होने वाला है और उसमें बदलाव आने वाला है, उसका लाभ मिलेगा। कभी कभी मैं छोटी बातें भी बताता हूं कि भाई ठीक है, मानो जैसे मैं कुछ विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के कार्यकर्ताओं से मिला था,
तो उनसे ऐसे मैंने एक सुझाव दिया था, बाद में उन्होंने शुरू किया। हमने उनको समझा कि मंदिर का जितना भी ये कूड़ा कचरा है वो आप उठाइए, फूल होते हैं ज्यादातर, और उसमें से उनको अगरबत्ती बनाना सिखाया। सुगंध नेचुरल मिल गई, उनकी गाड़ी चल पड़ी, बिक जाती और मंदिरों की सफाई होने लग गई, कमाने वालों की कमाई होने लगी। मैंने अभी लोगों से आग्रह किया है कि भाई छोटे छोटे अगर नगर है तो छोटे नगर के 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के एरिया में हम छोटे छोटे गड्ढे बनाएं और अर्थवर्म्स, केंचुए, ये ला करके रखें और शहर का कूड़ा कचरा वहीं पर फेंकते चले जाएं। वे अपने आप में इतने बड़े सफाई कर्मचारी हैं, ये केंचुए सारा कूड़े कचरे का फर्टिलाइजर में कन्वर्ट कर देते हैं और वो फर्टिलाइजर बेच करके आप कमाई कर सकते हो जी। एक छोटे नगर के बगल में अगर ये अर्थवर्म का उपयोग करके कर दिया जाए, बहुत बड़ी मात्रा में होता है। हर चीज के लिए बहुत बड़ी चीजों की जरूरत होती है ऐसा नहीं है, सामान्य चीजों से भी बदलाव लाया जा सकता है। हम इन बदलावों पर अगर बल देते हैं तो हम परिस्थिति पलट सकते हैं। हमारे देश में रिसाइकल ये कोई वेस्टर्न कंसेप्ट नहीं है, ये भारत के मूल स्वभाव में था जी। थ्रो अवे ये हमारे कल्चर का हिस्सा ही नहीं रहा कभी। रीयूज करो, रिसाइकल करो, ये हमारे यहाँ पुराने जमाने में आपने देखा होगा कि वो कपड़े पुराने हो जाएं तो फिर कोशिश करते हैं कि इसको बड़ा है तो छोटा बना करके छोटे के लिए काम आ सकता है उसमें से करे, वो भी पूरा हो जाए तो फिर उसमें से ओढ़ने के लिए कोई गद्दा वद्दा बन जाता है तो वो उसमें लाग दे, वो करने के बाद भी रह जाए तो फिर सफाई के लिए उसमें से टुकड़े निकाल करके काम करे। यानी उसका जब तक मोक्ष न हो पूरा उसका उपयोग करते, ये हमारी परंपरा रही है। थ्रो अवे कल्चर हमारी प्रकृति का कभी हिस्सा ही नहीं रहा। हम देखा होगा अब पुराने जमानों में हर घर में एक लंबर रूम रहता था। पुराने जमाने के जो आर्किटेक्चर है उसे देखना आप कभी, उस लंबर रूम में घर की जो बूढ़ी माँ होती थी कुछ भी है डालते थे। कोई कहेगा अरे माँ कुछ काम का नहीं फेंक दो, अरे बोले रखो बेटा कभी काम आएगा। वो उसमें हर चीज फेंकती रहती थी और दिवाली के समय फिर वो देखते थे, सफाई के समय निकालते थे तो देखते थे, फिर उसमें से 2-4 चीजें देखो ये घर में काम आ जाएगा, ये काम आ जाएगा। कोई चीज आज मुसीबत क्या है जी, नया लिया। ये स्थिति ने जो पैदा किया है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। हम कैसे इन आदतों को बदले, और ये कोई उपदेश के विषय नहीं है, हम सब अनुभव करते हैं कि इन चीजों से हम रास्ते निकाल सकते हैं। मुझे लगता है कि भोजन के बीच मुझे लंबा समय नहीं रहना चाहिए और इसलिए आप सबकी भोजन में देरी हो गई तो मैं क्षमा मांगते हुए मेरी बात को समाप्त करता हूं। लेकिन मैं फिर एक बार इस प्रयास के लिए अभिनंदन करता हूं और मैं देशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि इस देश को गंदा करने का हमें हक नहीं है, हमें हक। मैं तो ऐसे, कुछ लोग तो ऐसे होते इतने जोरों से भारत माता की जय बोले और फिर वहीं पर थूके। अब ये कहां भारत माता है? अब इसमें से हमें देश को बाहर लाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी, इंडिया टुडे ग्रुप ने एक सफाईगिरी का एंथम तैयार किया है। हम दरअसल हमारी कोशिश है कि एक धुन सी सवार हो जाए लोगों पर, तो मशहूर गायक दलेर मेहंदी जी ने अपनी आवाज दी है, इसको हम आपके लिए पेश करना चाहेंगे। चले में
Pradhan Mantri ji, thank you very much for coming and sparing this time with us. You reminded us again that this is a people's movement, it's not a government movement. But change is in the air, thanks to your starting this campaign, and we hope to take it forward. And I'm sure that the award winners are so happy to have met you and seen the encouragement you have given them. Thank you so much, sir, for coming.